নমস্কার, স্বাগত আপনাদের সোশ্যাল বাংলার পর্দায়। এই মুহূর্তে আমি আপনাদের সাথে রয়েছি পূজা। আজ সন্ধ্যার লাইভ অনুষ্ঠানে আমরা বিশেষভাবে রাজনীতির বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে চলেছি, কেননা সামনেই রয়েছে আসন্ন 2023 সালের বিধানসভা নির্বাচন এবং এই বিধানসভা নির্বাচনের লক্ষ্যে এই নির্বাচনী প্রাক মুহূর্তে রাজ্যে আমরা নানান ধরনের সমীকরণ পরিলক্ষিত করতে পারছি। তো এই বিষয়গুলোকে নিয়ে আজকে আমরা থাকবো রাজনৈতিক বিশেষ আলোচনায়, এবং আমাদের সাথে এই আলোচনায় আমাদের সঙ্গ দিতে এই মুহূর্তে আমাদের স্টুডিওতে আমরা পেয়ে গেছি রাজনৈতিক একজন বিশেষজ্ঞ, পলিটিক্যাল অ্যাডভাইজার আশফাক পটেল স্যারকে। স্যার, প্রথমেই স্বাগত আপনাকে সোশ্যাল বাংলায়। আপনাকে পেয়ে আমাদের মধ্যে আমরা অনেকটাই আনন্দিত, এবং আজকে বিশেষভাবে রাজ্য রাজনীতির বিশেষ আলোচনায় আমরা থাকতে চলেছি এবং আপনার এই বিষয়গুলো বা বর্তমানে রাজ্য রাজনীতিতে যে বিষয়গুলো উঠে আসছে সেদিক থেকে আপনার দৃষ্টিভঙ্গি কি রয়েছে আমরা জানার চেষ্টা করব। প্রথমে যদি আমরা দেখি, বর্তমানে আমরা এই যে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচন রয়েছে তার প্রায় 2 মাস হাতে বাকি রয়েছে। তো সেখানে দাঁড়িয়ে আমরা রাজনীতিতে নানান ধরনের সমীকরণ দেখতে পাচ্ছি। বর্তমানে রাজ্য রাজনীতি ঠিক কোন দিকে যাচ্ছে এবং তা ত্রিপুরাবাসীর জন্য বা ত্রিপুরাবাসী বা রাজ্যবাসীর জন্য তা কি ধরনের হতে চলেছে বা তাদের উপর কি ধরনের প্রভাব ফেলতে চলেছে সে বিষয়টা আপনার থেকে শুনবো। देखिए, सबसे पहले सभी त्रिपुरावासियों को मेरा नमस्कार, शुभ संध्या। त्रिपुरा का राजनीतिक परिस्थिति ये बहुत इंटरेस्टिंग हो चुका है। आज से कुछ महीने पहले मैंने एक शो किया था इसी स्टूडियो में, एमर्जिंग ट्रेंड ऑफ त्रिपुरा। उसमें मैंने ये जो चीज आप देख रहे हो इसको एंटिसिपेट किया था कि किस दिशा में जाने वाला है ट्रेंड, और मैंने ये एक प्रेडिक्शन लगाया था कि आने वाले दिनों में ऐसे काउंटर अलायंसेस और अलायंसेस होंगे कि जिसको डिकोड करना मुश्किल हो जाए। आज आप अगर देखोगे परिस्थिति तो एक ऐसे पॉइंट पर राजनीतिक स्थिति आ चुकी है कि ऑलरेडी कल फुल फ्लेज इलेक्शन कमीशन का टीम आया है, और उसके बाद अब यहाँ से वो टीम आज भी था, विशेष करके वो लोग मेघालय गए, नागालैंड गए। आने वाले 16-17 तारीख तक मोस्ट प्रॉब्ली मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि इलेक्शन का डेट अनाउंस हो जाएगा और मॉडर्न कोड ऑफ कंडक्ट इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो बस चंद दिन की बात है, और ऑलरेडी उससे पहले हर पार्टी अपना शक्ति प्रदर्शन कर रही है। आज आप देखोगे रैली, सारा माहौल, इससे पहले कुछ दिन का रैली, ये इस तरीके की सारी जो डेवलपमेंट्स है वो ऐसी दिशा में जा रही है कि आने वाले दिनों में एक हाई प्रोफाइल कैंपेन आप देख सकते हो, और एक इनडिसाइसिव पिक्चर होगा सामने। मतलब आप 2018 की परिस्थिति में बोल सकते थे कि ये पार्टी आएगा या ये आएगा। हाँ। आज 2023 में आप नहीं बोल सकते। नो एक्सपर्ट कैन डिकोड द प्रेजेंट सिनेरियो इन विच डायरेक्शन इट इज गोइंग। और मुझे लगता है कि 2023 के जो इलेक्शन है असेंबली के, ये ऐतिहासिक होने जा रहे हैं त्रिपुरा में। मुझे लगता है कि हिस्टोरिकली इट इज गोइंग टू बी वन ऑफ द फैंटास्टिक इलेक्शंस एवर कंडक्टेड इन त्रिपुरा। একেবারেই স্যার, আপনি যে বিষয়টি বলেছেন যে হ্যাঁ, এবারে নির্বাচনটা অনেকটাই অন্যরকম রয়েছে, এবং যদি আমরা বলি এই নির্বাচনী প্রাক মুহূর্তে আমরা কোনো কিছুই ধারণা করে নিতে পারছি না, এবং একেবারেই নতুন ধরনের একটি নির্বাচন কিন্তু এই 2023 সালের বিধানসভা নির্বাচন রয়েছে ত্রিপুরা রাজ্যে। যেটা আপনি বলেছেন যে 2018 সালে হয়তোবা আমরা বুঝে গিয়েছিলাম যে কোন দলটি আসতে পারে, কিন্তু এবার কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। এবার রাজ্য রাজনীতি এমন একটা বিষয়ে এসে দাঁড়িয়েছে, আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রত্যেক দিন কিছু একটি চমক আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে। তো সেখানে শক্তি প্রদর্শনের যে বিষয়টি আপনি বললেন যে হ্যাঁ, আজকের দিনে দাঁড়িয়ে যেহেতু নির্বাচন এগিয়ে এসেছে, সেখানে প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দলের আমরা দেখতে পাচ্ছি যে তাদের শক্তি প্রদর্শন চলছে, তাদের বিভিন্ন ধরনের সমাবেশ চলছে, জনসভা চলছে। আজকেও আমরা দেখতে পেয়েছি শাসক দলের বিশাল র্যালি ছিল, সুবিশাল যাত্রা ছিল তাদের। তো সেভাবে প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দলই তাদের শক্তি প্রদর্শন করতে ব্যস্ত রয়েছে আজকের দিনে দাঁড়িয়ে। এই শক্তি প্রদর্শন কে আপনি কিভাবে দেখছেন? देखिए, आज का रैली आप देखेंगे, जेपी नड्डा जी आए थे, तो इसका एक तरीके से समारोह हुआ है। बीजेपी का जो रैली रथ यात्रा के माध्यम से जो निकला था साउथ और नॉर्थ से, जिसका इनॉग्रेशन, जिसको एक फ्लैग ऑफ किया था अमित भाई शाह ने, केंद्रीय गृह मंत्री जी ने, और बड़े उत्साह के साथ लोग इसमें जुड़े हुए थे। एक्चुअली रथ यात्रा का समीकरण और बीजेपी का केमिस्ट्री ये बहुत इंटरेस्टिंग है। सितंबर 1990 में जब पहली बार रथ यात्रा सोमनाथ से अयोध्या तक चली थी, 10,000 किलोमीटर का माइलस्टोन अचीव हुआ था,
तो वो पहली बार था इंडियन डेमोक्रेसी में रथ यात्रा का प्रयोग। इंडियन डेमोक्रेसी के पर्सपेक्टिव में बात करेंगे तो डेमोक्रेसी की जब हम बात करते हैं ना, रिपब्लिक ऑफ इंडिया, तो आज भी मैं बोलूंगा कि इंडिया में डेमोक्रेसी वीक है और धर्म और आस्था का जो पगड़ा है वो हमेशा भारी रहता है। तो कहीं ना कहीं हमारे भारत का जो नागरिक है ये आस्था से ज्यादा जुड़ा हुआ है। रथ यात्रा आज भी उसको जनसंपर्क से जुड़ने का एक प्रभावी माध्यम बीजेपी के लिए है और जनसंपर्क को बढ़ाने का बढ़िया से बढ़िया प्रयास हर पार्टी करती है। तो रथ यात्रा बीजेपी का एक इनोवेटिव फीचर है। भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल जी की स्टार्ट हुई थी, इससे पहले कभी नहीं हुआ था ऐसा। हर पार्टी का एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कि वो अपने अपने गढ़ को मजबूत करेगी। किस किस तरीके से कैसी एक रणनीति का हिस्सा है। रथ यात्रा जो आज उसका समारोह हुआ है, आप देखेंगे काफी उत्साह में बीजेपी के लीडर्स, कर्मचारी, केंद्रीय नेतृत्व जो जुड़े थे, पूरा एंटायर कैबिनेट के सारे मंत्री यहाँ पर थे। हर एक ने अपना शक्ति और सामर्थ्य इस रैली को सक्सेसफुल करने में लगा दिया था। आप देख सकते हो पुलिस अरेंजमेंट, लॉ एंड ऑर्डर सारा इफेक्टिवली मैनेज हुआ और एक उसका समारोह बहुत पीसफुल अच्छे ढंग से हुआ। इससे कुछ दिन पहले आप देखेंगे कि रैलीज पैरेलली भी चल रही है। तेलियामुरा में सीपीएम की रैली, आज से कुछ दिन पहले लास्ट वीक कांग्रेस की रैली हुई थी। मैंने कांग्रेस की रैली में टाउन में इतने ज्यादा संख्या में इतने 4.5 साल में कभी नहीं देखा। ये हर चीज को दर्शा रहा है कि हर पार्टी का प्रभाव उसके संगठन के नेतृत्व में मजबूत हो रहा है। तो कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूं कि मैदान में कोई कमजोर खिलाड़ी नहीं है। और मुझे लगता है कि अभी त्रिपुरा का राजनीतिक समीकरण ऐसे स्टेज पर आ रहा है कि अनुभवी नेता को, किसी पार्टी को छोटा या बड़ा एसेस करना, कमजोर करना, ये एक बहुत बड़ी भूल होगी। यू नेवर नो हु विल स्वीप द ग्राउंड। और हर पार्टी का ये दावा है और हर पार्टी ये चाहती है कि पावर में आए और उस तरीके से गणतांत्रिक तरीके से हर किसी को ये अधिकार है और हर पार्टी के तरीके से उस स्तर पर प्रयास हो रहा है। सीपीएम कांग्रेस का आप देखोगे तो एक मेल मिलाप ऑलरेडी शुरू है। त्रिपुरा मोथा ऑलरेडी पहाड़ी इलाके में अपना प्रभाव जमा चुकी है और बीजेपी तो सत्ता में केंद्रित है ही है। बीजेपी का 35 सीट्स को लेके जो स्ट्रेंथ है और पहाड़ी इलाके में जो पार्टी आईपीएफटी था उनके साथ, तो कहीं ना कहीं एक ऑब्लिवियन सिचुएशन में चला गया आईपीएफटी, लेकिन मोथा ने इसको ऑक्यूपाई किया हुआ है। तो मोथा एक बहुत बड़ा फैक्टर काउंट होता है और ये अलायंस जब ये सीमेंटेड हो जाता है, जिसके ऊपर ऑलरेडी एक इफेक्टिव माध्यम से कांग्रेस और सीपीएम के स्तर पर काम हो रहा है, तो मुझे लगता है ये एक बहुत पोटेंशियल फैक्टर होगा बीजेपी के सामने कि रास्ता जो है, इससे पहले जो हो रहा था ना ये अलायंस, तो कभी ऐसे अलायंस सामने आया नहीं था कांग्रेस सीपीएम का। आप 20 साल का इतिहास उठा के देख लो तो यही सुदीप राय बर्मन जी जो कांग्रेस में अपोजिशन लीडर हुआ करते थे, इट वाज अ नेक टू नेक फाइट विद सीपीएम। आज वही नेक टू नेक फाइट करने वाली दो पार्टी एक अंडरस्टैंडिंग में पहुंची है और उनका नेक टू नेक फाइट बीजेपी के साथ। तो मैं समझ रहा हूं कि एक बहुत इंटरेस्टिंग टग ऑफ वॉर होने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग। और मैं आने वाले उभरते हुए अलायंसेस को बहुत इंटरेस्टिंग रूप से देखता हूं, जिसमें ये मेरे लिए भी बहुत मुश्किल होगा ये कह पाना। অ্যালায়েন্স বা জোটের বিষয়ে আমরা আসছি স্যার, কিন্তু সেখানে জানার বা আরো একটি বিষয় জানার রয়েছে যে শক্তি প্রদর্শনের বিষয়টা আমরা বলছিলাম। সেখানে আপনার থেকে জানতে চাইবো যে এই যে প্রত্যেকটি দল বিভিন্ন জনসভা বা জনসমাবেশের মাধ্যমে তাদের শক্তি প্রদর্শন করছে, তো সেই শক্তি প্রদর্শন এই আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে ভোটের ক্ষেত্রে আপনার কি মনে হয় কতটুকু কম বেশি হতে পারে? देखिए, शक्ति प्रदर्शन जो पार्टी करती है इसकी स्ट्रैटेजी क्या होती है? 60 असेंबली सीट्स में से यदि आप पूरे पैन त्रिपुरा लेवल से सब स्टेट से, अब यदि आप अगरतला में कोई रैली करवा रहे हो, इसका कॉम्पोजिशन कहाँ है, किस पार्टी के किस कॉन्स्टिट्यूंसी से कितने लोग आए हैं, और मान लो जब ये वोटिंग के दिन जाते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो वहां इनका कितना तबका है, ये अपने कैंडिडेट को कितना इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, कांग्रेस का रैली आया था जिसमें 10,000 प्लस लोग थे, बट मेरा ये सवाल है कि जब ये वोट काउंटिंग में कन्वर्ट होता है, इसका कन्वर्जन कितना होता है, इसका परसेंटेज कितना होता है सक्सेस की तरफ, और वो उस पार्टी के कैंडिडेट को कितने स्तर तक वो वोट देने में सक्सेसफुल होते हैं। अगर मान लीजिए कि 10,000 लोग
15 कॉन्स्टिट्यूंसी से आते हैं तो उसका इफेक्ट जब वो कॉन्स्टिट्यूंसी में वोटिंग करते हैं तो नेग्लिजिबल होता है। आप मान लीजिए कि वो 4 कॉन्स्टिट्यूंसी से 15,000 लोग आए हैं तो मैं बोलूंगा कि वो बहुत बड़ा गेम चेंजर है। স্যার একটু सेम चीज ইন্টারাপ্ট होता है করব, और पार्टी के लिए भी। একটি বিষয় তোলার চেষ্টা করছি আমরা যে সেখানে আমরা যদি বলি যে প্রচারের ক্ষেত্রেও কিন্তু অনেকটা এফেক্ট পড়ে। সেখানে প্রায় 20% ভোটার যদি আমরা দেখি যে নির্বাচনী প্রাক মুহূর্তে যে প্রচার রয়েছে প্রত্যেকটি দলের তাকে দেখেও সেখানে ভোট প্রদান করে। একটা অংশ রয়েছে সেখানে যে সাপোর্টার রয়েছে এই দলের, মানে এই দলেরই সাপোর্টার, কিন্তু একটা অংশ রয়েছে যারা নাকি প্রচারকে দেখেও সেখানে তাদের ভোটকে চেঞ্জ করে নেয়, এই দল থেকে অন্য দলে চলে যায়। তো সেক্ষেত্রে আপনি কি বলবেন? प्रचार का जो भी एक थीम होता है ना, एक टैगलाइन होता है ना, ये परसेप्शन बिल्ड करता है। अभी मान लीजिए रैली का जो कंपोजिशन है वो पार्टी का अपना कैडर, अपना स्ट्रेंथ होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो पब्लिक जो है, नॉर्मल पब्लिक है जो किसी पार्टी से एफिलिएटेड नहीं है, उनके लिए नैरेटिव ऑफ एनी पार्टी मंच पर जो भी भाषण वो देते हैं, जो भी अपने हाईलाइट्स को प्रेजेंट करते हैं, ये परसेप्शन बिल्ड करने का काम करती है। इसको मैं बोलूंगा कि एक तरीके से पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा, और ये पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा का आउटरीच कम से कम साधारण जनमत पे 25 से 30% होता है, जिसको मैं बोलूंगा फ्लोटिंग वोटर। ये फ्लोटिंग वोटर जो है ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि आज जो नूतन रिवाइज लिस्ट बना है 5 जनवरी को इलेक्शन स्टेट इलेक्शन डिपार्टमेंट ने पब्लिश किया है, इसमें आप देखिए 2,14,478 नंबर ऑफ फ्रेश वोटर्स ऐड हुआ है। यही संख्या 2018 में 48 थी। आप ये देखिए ऑलमोस्ट 4.5 टाइम से बढ़ गया है। ये वो तबका है जिसमें से मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ पीपल आर इनडिसाइसिव वेयर आर दे गोइंग टू वोट। उस वोट परसेंटेज को टैप करने के लिए नैरेटिव सबसे बड़ा काम करता है। अब किस पार्टी का नैरेटिव कितना अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया है और ये जो फ्लोटिंग वोटर है ये उसको किस तरीके से परसीव करता है। और इसमें कुछ परसेंटेज ऐसे भी होते हैं जो हालांकि परसेंटेज लेस है, बट इनका अपना एक एफिलिएशन, एक आइडियोलॉजी की तरफ रहता है। कोई सीपीएम पसंद करता है, कोई कांग्रेस पसंद करता है, कोई बीजेपी करता है, कोई और पार्टी का। तो ये एक इंपॉर्टेंट परसेंटेज होता है, बट द मैक्सिमम परसेंटेज मैं बोलूंगा कि वो अलाइन नहीं है रेड, लाइट या सेंटर, और वो बहुत बड़ा संख्या है। और शासक दल के लिए बेनिफिट ये हो सकता है कि दे कैन बैंक अपॉन देयर अचीवमेंट्स डिक्लेयर, जैसे डीए दिया, लेट दिया, मॉडल कोड लगने से कुछ दिन पहले दिया। एम्प्लॉय जो 1,80,000 85,000 जो एम्प्लॉयज है वो कितने संतुष्ट है। जैसे 7 पे कमीशन डिक्लेयर किया था 11 फरवरी की रैली में 2018 में अमित भाई शाह ने, वो एक पॉजिटिव इलेक्ट्रीफाइंग मैसेज था और उत्साह रहते जैसे बहुत अलग था। 12% डीए के बाद में मुझे आप बताइए, स्वामी विवेकानंद मंच नाम का जो ग्रुप है उन्होंने रैली की थी थैंक्स गिविंग का, चलो अच्छी बात है, लेकिन कितने फेडरेशन है जो रास्ते पे अपने वेतन बढ़ाने के लिए प्रोटेस्ट करते हैं या अपने राइट्स के लिए प्रोटेस्ट करते हैं। 12% डीए जाने के बाद कितने लोगों ने थैंक्स गिविंग दिया है सरकार को? मुझे एक भी फेडरेशन ऐसा नजर नहीं आता है। तो क्या सच में वो सेटिस्फाइड थे 12% से, या उनकी कोई और अपेक्षाएं थी जो नहीं पूरी हुई? तो ये डेफिनेटली गवर्नमेंट का अपना वो एक अचीवमेंट होता है। और भी बेनिफिशियरीज को कुछ दिया है तो रविंद्र भवन मुक्तदार ऑडिटोरियम में वो एक फेस्टिव तरीके से दिखाते हैं। आज ईपीआईसी के माध्यम से, इलेक्शन कमीशन के माध्यम से उज्जैन पैलेस में ईपीआईसी का वोटर्स को ये दिया गया है। तो एक तरीके का एक पॉजिटिव मैसेज जाता है न्यू वोटर्स में और मोटिवेट होते हैं। वोटिंग डेफिनेटली दे शुड कम आउट एंड वोट। ये सारे पैरामीटर्स काउंट होते हैं एक साधारण व्यक्ति के ऊपर। सेम वे ऑपोजिशन के पास क्या है दिखाने के लिए, दे हैव टू काउंटर व्हाट हैज नॉट बीन डन बाय द रूलिंग फैक्शन। तो ये सिचुएशन में हर एक का नैरेटिव कितना प्रभावी तरीके से लोगों के साइकोलॉजी पे काम करेगा, यही आने वाले दिन की बुनियाद तय करेगा कि परसेंटेज वोटिंग किसके फेवर में कितना जाएगा। और यहाँ पर नैरेटिव और प्रोपेगेंडा सबसे ज्यादा मायने रखता है, इंपॉर्टेंस। একেবারেই, কিন্তু আমরা যদি বলি বর্তমানে আমরা যে লাইভ অনুষ্ঠানে রয়েছি তার বর্তমান রাজ্য রাজনীতি কিভাবে চলছে অনেকটাই আমাদের অনেকেরই সেখানে বোধগম্যের বাইরে থাকে এবং সেখানে আমরা অনেকেই জানতে